Hello and welcome to another exciting episode of Fintech Ki Baat Dil Se, wherein we have in the studio Mr. Mahesh Shukla, founder of PayMe. Hi Mahesh, thank you so much for your earlier conversation on Founder Story, where you took us through the entire journey of building PayMe, and you also shared your inspiring anecdotes about how you kind of survived the tough times through COVID, as well as when you lost your founder. You are still standing strong and bought a company through. Hats off to you for that. And thank you so much for sharing that with us. If you all haven't checked out that episode yet, please go back and check out the episode of Mr. Mahesh Shukla in the Founder Story segment. Having said that, let's dive right into the Dhande Ki Baat segment. And thank you once again, Mahesh, for being with us. Thanks. Shreya. Thanks. So let's quickly just get into it. Uh, Pay Me, right? What's the origin story of the name? How did you make, or how did you kind of coin the name Pay Me? As I was saying that there was some pivoting when we started the venture. So we started the venture focusing on credit to all. Hmm. The focus was to kind of offer credit to underbanked and underserved. Right. And so we launched this platform. The platform was named Pay My Earning, Pay Me. Okay. And Pay My Earning was that okay, so you know somebody who is in dire need of credit, so even you Mm-hmm. can use our platform and refer that person. Okay. Maybe you will get some sort of commission, and Uh-huh. that is where you can claim your earning by referring people. So that was the thought when we launched, but we Oh. pivoted and shifted it to complete as a financial inclusive Acha, platform acha, acha. over the Interesting. So period. that's why it was Pay My Earning, because they were earning Yes, some commission that they right. were getting on referring that. Makes sense. So I think we've talked a bit about this, but just to refresh it for the audience, what problem statement is Pay Me solving? So PayMe is trying to build credit to underserved, the masses which are not served by banks and financial institutions, and Mm-hmm. make them credible so that they also can go and seek credit from any established financial institution over a certain point in time. So we Got deal it. with lots of new to credit consumers who Mm-hmm. doesn't even know how credit works, how the Mm-hmm. formal lending works. So we not only imbibe the right credit habit with them, we make them Mm-hmm. credible. We create a kind of loan performances for them. We educate them a lot that why they should borrow from a regulated entity rather than going to Lalaji. Right. And then over a period, of course, they are educated enough and they have a proper credit history so that they can go still stand in front of a bank that now you cannot And deny now credit you to can me. get a loan. Amazing. So let's break that down a bit, right? You said that you are a financial inclusion platform that enables credit for the underserved. Yes. So let's talk about these underserved market, right? Why is banks not currently giving loans to these people, and what enables you to kind of serve them or give them credit? Yeah, so I think that's really a nice question, and that is where the difference comes. So, Hmm. of course, banks, to certain extent, they are also keen to serve that business, but Hmm. there are number of protocols and number of conditions which they have to follow. Right. So, for an example, uh, they have to do a physical KYC, which is Hmm. OSV, original seen and verified. Now, of True. course, video KYC has replaced, but still that is difficult to get done at a third, maybe beyond tier three cities. Hmm. So when bank acquires a customer, there are certain costs. So Hmm. whenever they are acquiring and underwriting a customer, they would want the credit limit to be at a certain level. एक True. छोटे क्रेडिट से उनका काम नहीं चलेगा. Like we are dealing with a consumer base जहाँ पे हम 10,000 का भी क्रेडिट देते हैं Hmm. और हमारा कास्ट ऑफ एक्विजिशन विज केवाईसी एंड ऑल सब हो जाएगा. बट बैंक्स जब बिल्कुल. एक्वायर करता है तो दे वो टारगेट कि हम कम से कम 50,000 से 1 लाख का लोन करें क्योंकि मेरा 3,000 रुपए एक्विजिशन में ही खर्च हो गया. बिल्कुल. सो ये एक प्रॉब्लम है. हम लोग पूरा डिजिटल लेंडिंग ऐप है तो एंड टू एंड लाइक वी आर सिटिंग इन नोएडा एंड वी आर एक्वायरिंग कंज्यूमर्स इन अंडमान Wow. and that is happening without any touch point. So that is the beauty of digital lending The and that power is of why we are technology. able to, Yes. yes, we are able to serve them. बिल्कुल. आपने काफी इंटरेस्टिंग चीज कही. I just want to kind of deep dive into that a bit.
यू सेड कि ये पूरा जो प्रोसेस जो बैंक्स करते हैं एसेंशियली द ओएसडी एंड वीडियो केवाईसी वाला जो है, उसके अलावा जो आगे पीछे का जो पूरा ऑपरेशनल प्रोसेस है, दैट कॉस्ट देम समवेयर अराउंड लेट्स से 2-3 हज़ार या व्हाटएवर दैट अमाउंट इज. So this essentially means that there is a high cost of customer acquisition in the underserved area जहाँ पे कि उनकी branches नहीं है, हाँ जहाँ पे कि उनका थोड़ा सा reach कम है, right? In हम्म, this cases, that is one of the reasons why these people are not getting loans कि उनका हम्म, customer acquisition high है. तो यहाँ पे is it also a fact that कि because of this वहाँ की ticket sizes भी उनको afford नहीं कर पा रहे हैं lower ticket size लोग, because the more you go to the rural areas वहाँ पे जो लोन का अमाउंट उनको चाहिए रहता है, the ticket size is relatively lesser या एक थोड़ा सा कम रहता है, but because या सो yeah. देयर आर थ्री थिंग्स, तीन चीजें हैं इसके लिए। एक तो एक अर्निंग, जो सबसे बड़ा पोटेंशियल अर्निंग क्या है, उस हिसाब से उसकी क्रेडिट लिमिट डिसाइड होगी। बिल्कुल रिक्वायरमेंट क्या है, थर्ड रिजेक्शन रेट क्या है, वो भी एक रीजन होगा कि हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना रख रहे हैं। बिल्कुल. अब वहां पे क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, दे हैव अ वेरी थिन लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोफाइल, बहुत थिन क्रेडिट प्रोफाइल है उनकी, सो हम्म. रिजेक्शंस भी हाई है, अर्निंग पोटेंशियल लोअर है, तो इनका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो ऑटोमेटिकली काफी अप हो जाता है। सो दैट Got इज it. वन रीजन कि व्हाई दे आर रिलक्टेंट इन गोइंग देयर। So एक एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. If we talk about the rural India segment or the underserved segment, जो कि हम कहते हैं कि certain areas of India and certain segment of population which is not served, जिन्हें हम underserved या unserved कहते हैं. So why is that still unserved? जो वो एक समझना है. तो basically as you said right कि if अगर मैं lender हूँ, अगर मैं बैंक हूँ और मुझे मेरा धंधा बढ़ाना है, तो I would want कि मेरे लोग मतलब जाके मैं और धंधा करूँ and more loans दूँ. But to give good loans, there are three things that I needed. One is कि सारे जो उनके KYC डॉक्यूमेंट्स, नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन, ये होना चाहिए. दूसरा होना चाहिए उसका थोड़ा सा एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि यार ये बंदा मुझे पैसे वापस देगा, इसने कहीं और राइट। से लोन ली के वापस दी थी, जिसे हम क्रेडिट हिस्ट्री कहते हैं या क्रेडिट फाइल कहते हैं. एंड थर्ड चीज है जो कस्टमर, वो मेरे पास, हाउ विल आई डिस्कवर द कस्टमर और हाउ विल द कस्टमर नो दैट आई एग्जिस्ट. एक उसके लिए या तो फिर मेरे बंदे जाते हैं वहाँ पे, आरएम्स जाते हैं, मेरी ब्रांचेस से लोग जाते हैं, या फिर जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स मॉडल है जहाँ पे कि जो लोग गांव में बैठे हुए हैं वो एक मेरे एजेंट्स होते हैं, वो आर नॉट माई एम्प्लॉइज बट आर पीपल हु आर हेल्पिंग मी गेट लोन्स फॉर अ कमीशन. राइट। ये लोग जाते हैं और ये लोग उनसे वो सब डॉक्यूमेंट्स लेके मुझे देते हैं. सो यहाँ पे आप कह रहे हो कि ये जो एक रूरल एरिया वाला जो सेगमेंट है वहां पे एक तो प्रॉब्लम इज कि फॉर मी टू मेक मनी ऑफ अ लोन, जो इंटरेस्ट का अमाउंट जो मैं ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम, लेते एक साल के लिए मैंने कुछ लोन ली है, तो वो एक साल में जो इंटरेस्ट कमाऊंगा उससे मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और मेरा ऑपरेशनल जो कॉस्ट होने वाला है वो कम होना चाहिए, तभी जाके मेरा एक प्रॉफिट बनेगा उस पर. राइट। राइट. द इंटरेस्ट शुड कवर ऑल ऑफ दैट एंड मोर. सो इन दिस केस जहां पे कि अगर ये डिजिटल नहीं है, द कस्टमर एक्विजिशन डिजिटल नहीं है, मेरा बंदा जा रहा है तो वो बंदे को मैं सैलरी दे रहा हूँ, उसका ट्रैवलिंग एग्जैक्टली। एक्सपेंसेस दे रहा हूँ. एग्जैक्टली। And also in the cases, I'm also paying money to credit bureaus to check कि इसकी credit history सही है कि नहीं. And वहाँ पे I'm also checking whether there is essentially the credit file उसकी है, वो उसका history वगैरह है, all of that is good or not. And एंड द राइटिंग। I'll have to pay money for all of those things. So ultimately, this entire cost that I'll pay for my employee to go for the credit history check and for the processing the loans, I'm paying money more than interest that I'll get. And that is राइट। why it becomes unfeasible, and that is why that segment is underserved. Is that understanding Yeah, correct? yeah, yeah. So three kind of cost Hmm. when you offer a loan, तीन कॉस्ट होती है। एक सोर्सिंग की कॉस्ट होती है, एक्वायरिंग की कॉस्ट की वो मार्केटिंग के थ्रू हो सकती है डिजिटल केसेस में, Hmm. और आपके जो फिजिकल मॉडल्स है वहां पे जो बंदा जाएगा, अगर इवन वो करेस्पॉन्डेंट है तब भी ही इज सीकिंग सम मनी आउट ऑफ यू, राइट, ही True. नीड सम कमीशन। तो एक बिल्कुल. एक्विजिशन की कॉस्ट हो गई, दूसरा अंडर Ad हो गई. राइटिंग की Right. कॉस्ट हो गई। अंडर राइटिंग में वो ब्यूरो है एक, जो आपका एम्प्लॉय बैठ के उसका देखेगा, वो कॉस्ट है, और जो आपने रिजेक्ट कर दिया, सोर्सिंग कॉस्ट सर्टेन एक्सटेंट की, या उसको फाइल लाने की, ट्रांसफर की आपको देनी पड़ी, तो वो बिल्कुल. एक अंडर राइटिंग हो गई। थर्ड आता है आपका डिफॉल्ट कॉस्ट, जो कि अगेन एक मेजर कॉस्ट होता है व्हेन यू आर डूइंग लोन, तो आपको डिफॉल्ट भी मेजर करके चलना ही पड़ता है, इट्स Hmm. इनएविटेबल।
तो बिल्कुल। ये 3 तरह की कॉस्ट होती है, एंड देन योर कॉस्ट ऑफ मनी, हुँ, कि मुझे कितने पे पैसा मिल रहा है। तो ये राइट। 4 तरह की कॉस्ट डिसाइड करती हैं कि आपकी लेंडिंग कॉस्ट कितनी होगी, और हुँ, क्या टिकट साइज़ेज़ पे आप लेंडिंग करो तो आप प्रॉफिट बना सकते हो। बिल्कुल, सो वो चारों कहीं न कहीं मैच नहीं कर रही थी बैंक्स की, इसलिए वो सेगमेंट को लोन मिलना बड़ा मुश्किल रहता था। और उनके पास बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली वही लाला जी थे कि भई वो दुकान लगा के बैठे हैं, ट्रू। प्रॉपर्टी के पेपर ले आओ, ले जाओ। और लाला जी के साथ ये लोग को सबसे बड़ी तकलीफ क्या थी? ये जो अंडरसर्व्ड सेगमेंट है? कलेक्शन, मसल पावर, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का कोई रेट नहीं है। वो हर महीने आपसे इंटरेस्ट लेते रहेंगे, आपको लगेगा इतना पैसा है। सो जो आरओआई चार्ज होता है, दैट गोज़ अप टू 10% अ मंथ आल्सो। ओह माय गॉड! जबकि एंड बैंक्स इन तो साल का सर्टेन केसेस, 12-15% पे हाँ, देती थी, इन सर्टेन केसेस इवन 1% अ डे, व्हिच इज़ 30% अ मंथ। मंथ। ओह तो माय गॉड! आपने अगर हुँ, 10,000 रुपीज़ विथड्रॉ कर लिया, तो आप कभी हुँ, उसको पे ही नहीं कर पा रहे हो अपनी अर्निंग से। बिकॉज़ आप उनको हर महीना पे 5,000 रुपए भी दे रहे हो, तो वो इंटरेस्ट में ही कैलकुलेट करके बैठे, ब्याज में ही 3,000 ले रुपए रहे हैं। इंटरेस्ट ब्याज ही में कैलकुलेट, तो कोई कैलकुलेशन नहीं थी। हुँ, So हुँ, हुँ, at the end, he's not intended to make money by lending you. Of course, he's not holding any license. His intention is to acquire the property which you has pledged, and maybe उसको सेल करके उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मेक सेंस। सो पूरा एक्सप्लॉइटेशन वाला धंधा ही चल रहा है ये चीज़ हम्म। पे, जो अनसिक्योर्ड अ, इनफॉर्मल जो लेंडिंग कहते हैं, इनफॉर्मल जो लेंडिंग लाला है। जी है, बिल्कुल। So, how has digital lenders like yourself currently solved for this? मतलब पिछले जो 3-4 साल से इंडिया में डिजिटल लेंडिंग रेवोल्यूशन आ रहा है, तो यही प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सब फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें सॉल्व करना है, हमें इंक्लूसिव लेंडिंग करनी है। तो हाउ आर द टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल लेंडिंग जो टेक्नोलॉजीज आप बना रहे हो, हाउ इज दैट हेल्पिंग एड्रेस दिस? सो जो सबसे बड़ा चेंज डिजिटल लेंडर्स के थ्रू आया है, वो है हुँ, हुँ। एक एजुकेशन का चेंज। मतलब हुँ, अगर हुँ। इफ यू गो 5 इयर्स बैक, कितने लोगों को ब्यूरो की या सिविल की अंडरस्टैंडिंग थी? नोबडी न्यू इट, कोई पूछता भी नहीं बिल्कुल। था। आज हुँ, आप किसी बंदे को उठाओ, वो पहले पूछेगा कि मैं अब लोन अप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरे ब्यूरो में दिखेगा क्या? या फिर ब्यूरो भी देखोगे आप लोन के लिए। सो बिल्कुल, ये एक एजुकेशन का पार्ट रहा है और ग्रेजुअली हुआ है, जो कि बहुत जरूरी था। बिल्कुल। तो ये एजुकेशन जो एक्सपेंड हुआ है, इससे लोगों को ये भी पता लग गया कि भाई, अगर मैं लाला जी को कोई चीज़ दे रहा हूँ, मुझे तुरंत बिना सिबिल के मिल जा रहा है, बट हुँ, हुँ, इसका हुँ। लॉन्ग टर्म वो बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे मुझे बैंक में ₹300 महीना ब्याज देना पड़ रहा है, यहाँ हम 3,000 दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एजुकेशन से भी उन लोगों को पता लगा। प्लस ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या कंपनी के एफर्ट से नहीं हुआ है। हुँ, हुँ। इकोसिस्टम भी चेंज हुआ है। बिल्कुल, मैं अकेले या फिर मेरी कंपनी अकेले कुछ नहीं कर पाती अगर आधार बिल्कुल। इनेबल्ड केवाईसी नहीं होता, सी केवाईसी नहीं होता, ट्रू, मैंडेट्स नहीं होते ऑटोमेटेड। ट्रू, इनिशियल ट्रू। डेज में आपको बताऊं कि मैंडेट्स के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। हम मैंडेट्स कुरियर से भेजते थे, कस्टमर्स करके हमें वापस भेजता था। तो पहली ईएमआई या हुँ, दूसरी ईएमआई तक मैंडेट प्रेजेंट ही नहीं हो पाता था। समझ तो गया। ऑटोमेटिक पेमेंट्स का जो सिस्टम है, आप देखिए कि जो 2% पेमेंट गेटवे कंपनीज चार्ज करती थी, वो भी तो हुँ, यही इकोसिस्टम की वजह से धीरे-धीरे बदल गया है। एक लोन में आपको बिल्कुल, इतना मार्जिन नहीं होता कि आप 1% उनको दे दो, आपका टोटल मार्जिन ही उससे कम है। सो ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल। चेंज हुई हैं, तो एक कंबाइंड एफर्ट रहा है। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। एंड जो हम बात करते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट की या फिर केवाईसी कॉस्ट की, हाउ हैज़ दैट कम डाउन? मतलब ये जो जो टेक्नोलॉजीज़ ने उस चीज़ को कैसे रिवॉल्यूशनाइज़ किया है? राइट, सो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ही देख लीजिए। अब पहले क्या होता था कि आपको ये एक फिजिकल ब्रांच रखनी है, उसका कॉस्ट आ गया, जिसको वो और वहां पे लिखना है कि हाँ, हम लोन देते हैं इतना परसेंट पे। फिर एक हुँ, बंदा रखना है जो हर दुकान पे मेले में पोस्टर लगा के चिपका के बता रहा है लोगों को, बिल्कुल। या फिर किसी और तरीके से बता रहा है। हुँ, हुँ, उसके बाद फिर वो कस्टमर आपके यहाँ होगा, एक बंदा उसको एंटरटेन करने के लिए चाहिए। तो ये सारी बिल्कुल। कहीं ना कहीं कॉस्ट है, जो कि वो लेगा, डॉक्यूमेंट प्रिंट करेगा, हाँ जी। स्कैन करेगा। ये हुँ, सारी कॉस्ट एलिमिनेट हो गई डिजिटल लेंडिंग ऐप्स से और डिजिटाइजेशन आने से। तो अब क्या है, वो हुँ, घर में हुँ, बैठे-बैठे अपना इस मोबाइल से ही सारी चीज़ें हमें स्कैन करके दे रहा है। वहाँ से वो अपना हो जा रहा है, उसका अप्रूव कर दे रहा है जो भी है, केवाईसी 2 मिनट में केवाईसी हो जा रही है उसकी। तो हमारे हुँ, लिए हुँ, भी कॉस्ट कम हुआ। जहाँ पे ये फिजिकल वे में करने में 2,500-3,000 रुपए लगते थे आपको,
वो आप बिल्कुल, 300 रुपए में कर ले रहे हो, तो बिल्कुल, 10 टाइम्स कॉस्ट लो हुई। इसीलिए अंडर राइटिंग छोटे छोटे लोन्स की भी पॉसिबल हो पाई। बिल्कुल। तो वो टिकट साइज़ पहले जो 1 लाख रुपए में जो प्रॉफ़िट बनता था, वो आज वो ही 5,000 में भी प्रॉफ़िट बना पा रहे हैं बिकॉज़ ये कम हो गया है कॉस्ट, जी, बिकॉज़ ऑफ डिजिटल बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। अभी जो इसमें अंडरराइटिंग की जो हम बात करते हैं, जो आप कहते हैं थिन क्रेडिट फाइल्स जो हम कहते हैं, राइट? जिनका कुछ डेटा नहीं था या फिर बहुत ही लिमिटेड डेटा है, जिसपे कि हुँ। एक फॉर्मल लेंडिंग ऑर्गेनाइज़ेशन जो बैंक वगैरह है, पहले लोन्स नहीं दे पाते थे। तो अभी ये अंडरराइटिंग में व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ कम, राइट? किस तरह का बदलाव आया है सो दैट नाउ इट इज़ पॉसिबल टू प्रोसेस दोज़ फाइल्स and kind of give loans or at least make credit available to a larger or a wider segment of people. या सो उसमें 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो पहले अकाउंट्स में लोग ट्रांज़ैक्शन कम करते थे। तो जो सबसे बड़ा फ़ेज़ चला कि यूपीआई के आने से अब सारा ट्रांज़ैक्शन अकाउंट से होता है। जन-धन जैसी स्कीम हम्म, निकली जिससे जिसके पास अकाउंट नहीं था उसके पास भी हो गया। बिल्कुल, कैश कैश का एकदम खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, सैलरीज़ अब अकाउंट्स में ही जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा एज मिला। राइट, अब उसके बेसिस पे आपको डेटा पॉइंट बना के इसको अंडरराइट करना है। Like I know हम्म, that this is Shreyas and this is what he does, this is how he earns. But आपका कोई लोन प्रोफाइल नहीं है। So बिल्कुल, what kind of connected data points I can create जिससे कि मैं आपको अंडरराइट कर सकूं? तो वहां पे हम्म, डेटा साइंस बैक एआई बैक मॉडल्स बने, बिकॉज ये वॉल्यूम गेम है। ऑन एन एवरेज वी गिव ऑलमोस्ट 100,000 लोन्स इन अ मंथ। अब वो हम्म, 100,000 लोन्स को अंडरराइट करने के लिए अगर मैं मैनुअल टीम बिठाता, बिल्कुल, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी टीम मुझे चाहिए होती। बट इट्स ट्रू, ऑल पॉसिबल विद अ वेरी स्मॉल टीम। 3 लोग बैठे हैं, वो लोग भी कर लेते हैं, बिकॉज हम्म, हमारे पास डेटा बैक मॉडल है, एआई बैक मॉडल है। और बिल्कुल, इनको प्रोसेस करने के लिए सिस्टम बने हैं। फॉर एन एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट एनालाइजर ही है। जैसे आप पहले वो हम्म, बैंक स्टेटमेंट लेता था आदमी, उसमें गोल-गोल बनाता था कि ये सैलरी आ रही है, ये डेबिट हो रहा है। अब ये हम्म, आपको बना-बनाया 1 मिनट में प्रोसेस होके आ जा रहा है। तो जो-जो हम्म, हमें इनपुट्स मिलते जा रहे हैं, हम उसको डेटा बैक मॉडल्स में डल रहा है और सीधा हमें आउटपुट मिल रहा है कि हाँ, ये तो करने लायक नहीं है, ये करने लायक है। इन पे इफ यू वांट टू हैव अ लुक, यू कैन हैव अ लुक। और ये लिमिट है। तो ऑटोमेशन बहुत ही हेल्प मिला उससे इस कॉस्ट को रिड्यूस करने में। So बिल्कुल, when we started, तो the thought was to bring in a model 3-to-1 credit। मतलब हम्म, 3 मिनट में पूरी ऑनबोर्डिंग हो जाए, जो कस्टमर को फॉर्म वॉर्म भरना है, डेटा अपलोड करना है, वो कर दे। दो बिल्कुल, मिनट में हम उसकी अंडर राइटिंग कर लें और हाँ, 1 मिनट में उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाए विद द हेल्प ऑफ राइट तो पार्टनर। मोटा मोटी 5-7 मिनट में आप पूरा एक लोन एप्लीकेशन लेके डिसबर्स कर सकते हो। हाँ, सो दैट वाज द वाह, थॉट। कुछ डिपेंडेंसी है कुछ पार्टनर्स में, लाइक हम तो भेज देते हैं कि ये अप्रूव्ड है एज पर आवर अंडरस्टूड क्रेडिट पैरामीटर। हम्म, बिकॉज एट द एंड पार्टनर्स आल्सो हैड टू चेक दैट पैरामीटर। तो थोड़ा सा टाइम लगता है वहां पे। अदरवाइज एक कस्टमर को टिपिकली ऑनबोर्ड करके डिसबर्सल तक पहुंचाने में इट्स जस्ट 7 मिनट्स, सिक्स वाह, मिनट्स वाह! सो पहले जो ये 4-5 दिन रुकना पड़ता था छोटी लोन के लिए और होम लोन के लिए तो अब 3-4 महीने अटक जाते थे। हाँ, नाउ हाँ। दैट कैन ड्रास्टिकली कम डाउन। दैट कैन यस। बिल्कुल। लेट्स लेट्स टॉक अ बिट अबाउट एआई बेस्ड अंडरराइटिंग, राइट? आपने कहा काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि हम जब अंडरराइटिंग की बात करते हैं तो उसमें हम 2 तरीके से देखते हैं, राइट? एक इज़ एबिलिटी टू पे, कि उसकी काबिलियत क्या है कि ये अमाउंट का लोन महीने का अगर वो 5,000 की ईएमआई बनता है उसका तो वो दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। और दूसरा हो जाता है इंटेंशन टू पे, कि उसका इरादा है कि नहीं पैसे लौटाने का। ये राइट। 2 चीज़ें हो जाती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अंडरसर्व्ड सेगमेंट, सबसे बड़ी कभी-कभी तकलीफ ये आती है कि हम उनके इंटेंशन नहीं समझ पाते हैं। बिकॉज़ इंटेंशन टू पे नॉर्मली जो बैंक होता है, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ दे अंडरस्टैंड दैट बाय ईदर क्रेडिट हिस्ट्री, कि इसने पहले भी या लोन्स पे करी है, राइट? एबिलिटी टू पे तो आपकी इनकम से समझ में आ जाता है कि अगर ये बंदा एक दुकान खोल के बैठा है और क्यूआर कोड से अगर दिन के 5,000 का ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, मतलब इसके 5,000 के दिन के मतलब महीने की 30 मतलब इंटू 30 कर लोगे आप तो 1,50,000 की तो इसकी रेवेन्यू हो गई। इसमें से अगर राइट, इसका प्रॉफिट इतना होगा एंड कैश राइट, में थोड़ा बहुत लेता होगा, तो वो हिसाब से एक अप्रॉक्सिमेट आप नंबर निकाल सकते हो। राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेंशन टू पे, तो इसको किस तरह से ये जो एआई बेस्ड अंडरराइटिंग है, हाउ इज इट सॉल्विंग फॉर दैट प्रॉब्लम फॉर थिन फाइल कस्टमर्स? ओके, या सो जो थिन फाइल कस्टमर्स हैं, उनको जो एआई बेस्ड तो मॉडल वही है जिसको जिसको आप हम्म, सिखाओगे। जनरेटिव एआई आ गई है, तो पहले तो
बेस एआई था। तो जितना आप सिखाते थे वो डेटा बैक्ड मॉडल थे जिनको हम बोलते थे, बिल्कुल। लॉजिक बैक्ड। तो आपने उनको एक हुँ। चीज़ सिखा दी, वो उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन करते रहते। देन केम इन जनरेटिव एआई, जो हुँ, कि हुँ। उसको तो लेगा ही, नए बिहेवियर को भी सीखेगा और फिर आपको नए-नए एल्गोरिदम्स देगा या नए-नए प्रोस एंड कॉन्स देगा कि बॉस आई हुँ, हैव हुँ, हुँ। आइडेंटिफाइड अनदर कंज्यूमर बेस आल्सो हू मे पे इफ हुँ, गिवन द राइट क्रेडिट लिमिट। तो ये राइट। आपको मॉडल से एक हिंट मिलना शुरू हुआ। अब उसमें हम लोग कैसे करते हैं, जो आपके पास ब्यूरो में हमने फेच किया तो एनटीसी आए। अब आपका हिस्ट्री तो है नहीं कि हम हुँ, ये डिसाइड कर सकें कि आपका कंडक्ट कैसा है, योर लाइकलीनेस टू पे कैसा है, यू हैव नॉट सॉल्व्ड इट। बिल्कुल। So main dependency comes from your profile, that who are you, where are हुँ, you हुँ, residing, what kind of work you've been doing. So this बिल्कुल। is first. Second, how strong is your banking profile, तो उसमें आप गॉट इट। कैसे बिहेव कर रहे हो. हुँ, हुँ, So हुँ। if you identify transactions which are not good in nature, for example lots of bet related or lottery related transactions which is हुँ, 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 हुँ। deemed to be very negative, तो अगर आप सट्टेबाजी या इस तरह की चीजों में हो तो सिस्टम विल कंसीडर यू मे बी एज अ प्रोबेबल रिस्क। डिफॉल्टर, तो आपको लोन वो रिस्क साइड में बहुत बढ़ जाएगा, तो चांसेस आर वेरी लेस कि हुँ, हुँ, आपको लोन हुँ। मिले. इंटरेस्टिंग। सो इस तरह से ये फायदे मिले हैं और एआई उसको बहुत अच्छे से टैकल कर पा रहा है, रीड कर पा रहा है और कैटेगराइज कर पा रहा है. हुँ, हुँ, हुँ। अंडरस्टूड। एंड हाउ इज़ मतलब ओवरऑल इकोसिस्टम एंड रेगुलेटर का क्या व्यू है ये जनरेटिव एआई बेस्ड अंडरराइटिंग के ऊपर? Initially it was good, but recently regulator has raised a cautious warning कि भाई बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी मत दिखाओ इसमें. और हुँ, ये सडनली नहीं आया, दिस हैज बीन अ फीडबैक आल्सो. तो इसमें भी एक प्रोग्रेस बिल्कुल। हुआ, एज आई सेड कि पहले वो लॉजिक बैक्ड मॉडल थे, फिर हुँ, डेटा हुँ, साइंस बैक्ड मॉडल हुए, अब वो एआई बैक्ड, जनरेटिव एआई बैक्ड हो गए. तो बिल्कुल। लॉजिक बैक्ड में आपने जो बता दिया उसी बेसिस पे वो प्रेडिक्ट कर देता था. फिर हुँ, डीएस हुँ, बैक्ड में आया, उसको टाइम टाइम पे ट्रेन करना होता था कि अब इसको समझाओ, अच्छा अब आपके पास 2 लाख डेटा पूल और आ गया, फिर इसको समझाओ. हुँ, हुँ, एआई हुँ। क्या है, वो सिस्टम इनबिल्ट, वो सीखता ही रह रहा है. सो इट इज़ लर्निंग हाँ, एवरी डे, जनरेटिव एआई. खुद से सीखता है। हाँ, राइट। बट स्टिल एक एक जो अंडरराइटिंग का प्रोसेस था कि यू गिव ऑल सॉर्ट ऑफ इनपुट, इट विल गो इनटू अ ब्लैक बॉक्स, इट विल गेट प्रोसेस्ड एंड यू विल गेट आउटपुट. हुँ, अब लोगों को ये नहीं समझ में था कि उसने क्या कंसीडर करके ये आउटपुट दिया कि हाँ, श्रेयस अच्छा है बट महेश नेगेटिव है. यही मिलता था, उससे ये क्यों नहीं नहीं मिलेगा, समझ में आता था? लॉजिक नहीं हाँ, मिलेगा. तो समझ वो गया। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए रेगुलेटर्स के व्यू बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव होते हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी मत करो, एट द एंड इट्स अ मशीन. ह्यूमन हुँ, इंटेलिजेंस तो चाहिए ही चाहिए अंडरराइटिंग में, तो डोंट गेट ट्रू, 100% डिपेंडेंट. ट्रू। बट नाउ देयर इज अनदर मूवमेंट जहाँ पे एक्सएआई आ गए, एक्सप्लेनेबल एआई. तो एक्सप्लेनेबल एआई, वहाँ, ओके। हाँ, एक्सप्लेनेबल एआई में क्या है कि यू कैन एक्सप्लेन कि यू एज एन ह्यूमन बीइंग यू कैन मॉनिटर, आप हुँ, ह्यूमन हुँ, इंटेलिजेंस भी लगा सकते हो और उसका एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हो और अपने इनपुट्स भी दे सकते हो. सो दिस इज गोइंग टू बी अनदर लेयर, एंड आई थिंक अगर ये प्रॉपरली किसी लेंडर, ट्रेडिशनल लेंडर को भी समझाया जाएगा तो ही विल बाय इट. पहले वो लोग भी बोलते हैं बस सिस्टम तो दिखाओ, बिकॉज आप आ रहे हो कि मैं तो बिल्कुल। एआई बेस्ड अंडर राइटिंग करता हूँ, मुझे आप कुछ हुँ, दिखा नहीं रहे हो, आप कह रहे हो कि ये बुरा हुँ, ये अच्छा. मानता हूँ कि आपके चीजें अच्छी आ रही, बट इट इज मोर ऑफ अ गेसिंग वर्क लग रहा है. ये तुक्का लग ज्योतिष रहा हो है, हाँ क्या जी। आप? ज्योतिष जैसा काम करते हो आप. तो अब बिल्कुल, उनको समझाया जा सकता है कि बॉस, दीज आर एक्सप्लेनेबल एआईज, इस ये देखिए काइंड आप यहाँ पे मशीन्स। हैं, यू कैन मॉनिटर, यू कैन गिव योर इनपुट्स और हुँ, अपना इंटेलिजेंस भी लगा सकते हो. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। Yeah, I think that'll help a lot. And it is actually right, right? If you're rejecting someone, and you should know what kind of customers are you rejecting. Maybe there is a mistake in the algorithm जिसकी वजह से वो एक पैरामीटर को गलत तरीके से वेट किया हुआ है. Because of which it is rejecting maybe good customers और आपका धंधा जा रहा है. राइट. एंड अगर उल्टा हो रहा है तो डिफॉल्टर्स को भी शायद कुछ अपना पैरामीटर उल्टा सुल्टा अगर वेटेज हो गया है कहीं पे, बिकॉज ऑफ विच मे बी प्रोबेबल डिफॉल्टर्स को भी पॉजिटिव में आ रहा है. सो यू हैव टू हैव दैट एक्सप्लेनेशन विच नाउ इज राइट. पॉसिबल थ्रू दैट एल्गो, द या न्यूअर या एक्स एआई. सो बिल्कुल. या दैट गिव्स मी अनदर अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट वन प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया बेसिस दैट, जहाँ हम्म, पे जिन कंज्यूमर्स को हम रिजेक्ट कर देते थे, इवन पहले भी बैंक्स जो रिजेक्ट कर देते थे, तो हम्म, दैट कस्टमर हैज नो साइट कि मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया गया. चलो बिल्कुल. ठीक है, मेरे से कुछ गलती, कहीं मेरी प्रोफाइल में कमजोरी है, बट लेट मी नो कि क्यों रिजेक्ट हुआ, सो दैट आई कैन हम्म, फिक्स इट बिफोर गोइंग टू अनदर लेंडर. ट्रू. सो इस तरह की कम्युनिकेशन उनको नहीं मिल रही है. विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेबल एआईज एंड एआईज, वी आर नाउ गेटिंग डीप डाइव इनटू दैट. एक हम्म, हम प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं और हम अपने कंज्यूमर्स को भेजते हैं
क्रेडिट असिस्ट नाम का हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, जहाँ पे हम उनको प्रॉपर बताते हैं कि उनका हम्म रिजेक्शन हुआ तो ब्यूरो में कोई फॉल्ट है या फिर उनके बैंकिंग में वीकनेस है तो क्या है? एंड इफ दे वांट टू रिमेन इनटू दैट, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट गिव क्रेडिट टू देम एज़ ऑफ नाउ, but if you हम्म want to really fix it, remain into the ecosystem, so they can stay in touch with us and we will help them in fixing it over a period, and we will बिल्कुल make sure that they are now credible over a period. तो जहाँ जहाँ उनकी गलतियां हम उनको आइडेंटिफाई करके फिक्स करने में help करते interesting. I think that kind of a product will actually help more people, securely kind of build their credit profile so that they'll become eligible for credit later on. आप उनको बताओगे कि सही behaviors क्या है, क्या आप change कर सकते हो, so that it kind of helps them build a profile that will actually get a loan over a period of time, and then they could become your customers. So हैं। Yeah, pretty interesting. I think that is more of a socially responsible thing to do as a lender, to create awareness and build good credit behavior. yeah, Having said that, this brings me to the last part of this conversation. 2 साल पहले मैं लोगों को पूछता था कि जब जब 2 साल पहले पॉडकास्ट शुरू हुई थी ना, तो मैं पूछता था कि यार ये एआई वगैरह से आपको क्या लगता है क्या होगा लेंडिंग वगैरह hmm, में. एंड टुडे वी आर एक्चुअली सीइंग द इम्पैक्ट ऑफ इट, राइट? yeah. लोअर कॉस्ट्स, more approval rate, higher approval rate, more wider profile acceptance and all of that. But अभी अगले 5 साल में आपको क्या लग रहा है कौन सी टेक्नोलॉजी विल एसेंशियली हेल्प यू रेवोल्यूशनाइज डिजिटल लेंडिंग, एंड हाउ डू यू थिंक यू विल गो अबाउट इट एज पेमी? So दो चीजों पे हमारा फोकस, ऑफ कोर्स एआई इज समथिंग हम्म विच यू कैन नॉट लीव बिहाइंड, यू विल हैव टू ट्रू. कंटिन्यूअसली फॉलो इट, और इसका भी एक फेज रहा और आगे भी फेज रहेगा, इट विल बिल्कुल. कंटिन्यू टू शिफ्ट. So apart from that, our focus is on Oaken, जो कि we are keeping a close eye on credit over UPI, हम्म which is actually there has been one product which we launched in past, हम्म but because of regulatory challenges, we had to kind of shut it down or maybe call it back so that we can make it हम्म compliant and relaunch again. Finally, गॉट we have इट. got a note from government that we can go, and with the help of banks, we can launch credit over UPI. Oh So wow. that is another product which we, as a company, we are focused and we are planning to launch soon for our consumer base. But I think this is super exciting. Hopefully, Open platform will kind of help reduce the lot of the pain points that are currently also there in the ecosystem, from an approval point of view to identifying the right lender for the right borrower and so on and so forth. एक central ecosystem खड़ा हो जाएगा, and we are all super Right. excited about it. Yes, right. And as far as the credit on UPI, I think that is going to be a game changer for the ecosystem, because once you are able to make transactions using UPI for the credit that you get, it kind of opens up all new avenue to make those expenses and drive those spends. Yes, true. Perfect. Uh, I think that brings us to the close of this conversation. Thank you so much, Mahesh. It was really a pleasure and learned a lot from you. बहुत मजा आया and काफी कुछ सीखने मिला. Thank you so much. And Thank you, Shreyas. yeah, I think I had a good time, and of course, wish you all the luck. thank you so much. Wishing you all the luck as well. Thank you.